students, welcome back to the channel. So in the previous video we learned about the present tense, and today we will learn about the past and future. Okay, so let's get started. Past tense. The past tense refers to an event or an action that has happened in the past. मीन वो एक्शन जो कि पास्ट में हो चुका है. ओके, नंबर 1, सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस. Simple past tense used to indicate an action completed in the past. Means simple past tense is used to talk about an action that happened and finished in the past. Okay, so इसका rule है, if we have to make affirmative sentence, subject, second form of verb, object. Sentence: she cooked food. And in the negative, subject did not, first form of verb and object. For example, she did not cook food. She cooked food means उसने खाना बनाया. She did not cook food means उसने खाना नहीं बनाया. Okay, means the action that is completed in the past. Next, past continuous tense. Past continuous tense is used to denote an action going on at some time in the past. Means we are talking about that time जिसमें हम कोई मीन्स जिसमें कोई काम चल रहा था. And its rule is subject, was, were, first form of verb, ing and object. For example, I was driving a car last evening. Means we are talking about last evening. और last evening means पिछली शाम को मैं कार चला रहा था. Okay. Next, past perfect. Past perfect tense is used to describe an action that had already been completed before another action happened in the past. Means कि पास्ट में कोई दूसरा काम शुरू होने से पहले ही हमारा जो पहला काम है वो ख़त्म हो चुका था. Its rule is subject, had, third form of verb and object. For example, the patient had died before the doctor came. Means डॉक्टर के आने से पहले ही जो पेशेंट है वो मर चुका था. Means to describe an action that already completed, जो पहले ही पूरा हो चुका है किसी दूसरे काम के होने से पहले. जैसे इस सेंटेंस में क्या है कि डॉक्टर के आने से पहले ही जो पेशेंट है हैड डाइड, वो मर चुका था. ओके, सो नेक्स्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. Past perfect continuous tense is used to talk about an action that had been continuing for some time before another action happened in the past. Means another action से पहले ही कोई काम चल रहा था. Rule: subject had been, first form of verb ing, object and since for. For example, she had been studying for 2 hours before the exam started. Means एग्ज़ाम शुरू होने से पहले तक वो 2 घंटे से पढ़ रही थी. मीन्स जब एग्ज़ाम शुरू हुआ, लाइक अगर 9 बजे एग्ज़ाम शुरू हुआ तो एग्ज़ाम शुरू होने से पहले वो 2 घंटे से पढ़ रही थी. ओके, नेक्स्ट इज़
future tense. Future tense refers to the actions which will occur later in future. Means वो काम जो अभी फ्यूचर में होगा, आने वाले समय में होगा. So first of all, simple future tense or future indefinite tense. It is used to talk about an action that will happen in the future. Means वो काम जो अभी आने वाले समय में हम करेंगे. Its rule, subject, will shall, first form of verb and object. For example, they will help us. Means वो हमारी मदद करेंगे. Means आने वाले टाइम में करेंगे. ओके, सो हमारा जो एक्शन है इट विल हैपन इन द फ्यूचर. नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस. फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल बी हैपनिंग एट अ पर्टिकुलर टाइम इन फ्यूचर. मीन्स हमारा जो एक्शन है वो एक पर्टिकुलर टाइम में होगा. फॉर एग्जाम्पल, रूल है सब्जेक्ट, विल शैल, बी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट. सेंटेंस, आई शैल बी स्टडिंग एट 8 PM. मीन्स हम बात कर रहे हैं 8 बजे की, तो 8 बजे मैं पढ़ रही होंगी. मतलब हम बात तो फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन उसमें जो हमारा टेंस है वो हमारा जो एक्शन है वो अभी चल रहा है. इट्स हैपनिंग. मीन्स हम उस समय की बात कर रहे हैं जब हमारा जो एक्शन है वो जारी होगा. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट. फ्यूचर परफेक्ट टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन completed before a certain time or another action in future. मीन्स बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में किसी दूसरे काम के शुरू होने से पहले ही हमारा काम ख़त्म हो चुका होगा. रूल है इसका सब्जेक्ट, विल शैल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, दे विल हैव completed the project by next week. मीन्स कि वो अगले हफ्ते तक प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे. ओके. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट विल हैव बीन कंटिन्यूइंग फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम before a certain time or another action in the future. मीन्स इसका यूज़ हम तब करते हैं जो फ्यूचर में किसी सर्टेन टाइम या फिर अनदर एक्शन से पहले से हमारा जो काम है वो चल रहा है. मतलब दूसरा काम ख़त्म होने से पहले तक भी हमारा वो काम चल रहा है. इसका रूल है सब्जेक्ट, विल शैल, have been, first form of verb ing, object and since for. For example, they will have been working for 3 hours. Means वे 3 घंटे से काम कर रहे होंगे. अगर मैं इसके आगे लगा दूँ by 10 PM, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि रात के 10 बजे तक वो 3 घंटे से काम कर रहे होंगे. ओके. सो हमारा पास्ट, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर तीनों कंप्लीट हो चुके हैं.